Good morning, everyone. We will do this sum. You can see in the screen. Abrol Limited offered to the public 5,000 9% mortgage debentures of rupees 100 each at rupees 105. So Abrol Limited is the name of the company. It is offering to the public 5,000 shares. So not shares, debentures. 9% is the rate of interest. तो 100 रुपीज का डिबेंचर है, 105 में ऑफर हो रहे. That is the issue price. Now they have appointed Smart Bulls as their underwriter for 80% of the issue at 2.5% commission. So applications received for 4,000 debentures, 5,000 shares है, debentures है 4,000 जिसके लिए एप्लीकेशन मिला, सबको debentures allot किया. See, it is so told, allot 4,000 application were received from public for 4,000 debentures which were allotted. Show the journal entries. So solution में first let us find out the liability of the underwriter. Liability of the underwriters. The only one underwriter is there, Smart Bulls. तो सबसे पहले उसका gross liability देख लेते. What do you mean by gross liability? Means उसको overall कितना debentures sell करना है. टोटल 5,000 है, बट उसको 80% के लिए अपॉइंट किया है. सो 5,000 का 80% कितना हो जाएगा? 5,000 का 80% is how much debentures? 4,000. इसमें से लेस करेंगे एप्लीकेशंस रिसीव फ्रॉम पब्लिक. Applications received from public. लेकिन tell me 4,000 applications मिला, क्या वो सारा स्मार्ट बुल्स को मिलेगा उसका? बट उसको कितना मिलेगा? 4,000 का how much percent? He is entitled for 80%. Then how much you will get? You will get 3,200. So how much will be the net liability? Net liability of underwriter कितना रहेगा? 4,000 minus 3,200, which is equal to 800. Now what we will do? Let us, what they have asked us to prepare journal entries. So let us do the journal entries. Journal entries में सबसे पहले एप्लीकेशन कितना शेयर्स के लिए आया और कितना शेयर स्मार्ट बुल को खरीदना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन, शेयर्स का एप्लीकेशन. पहला एंट्री में लेट अस सी हियर हाउ मेनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड. उसको बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट. जितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिला उसके लिए पैसा आएगा. कितना? 4,000 में हम लोग को यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? कितना एप्लीकेशन मिला? 4,000 इंटू हाउ मच प्राइस? 105. तो हाउ मच विल दिस कम? 4,000 into 105, 4,20,000. इसके बाद स्मार्ट बुल्स कितना खरीदेगा? हुआ स्मार्ट बुल, दे आर द अंडरराइटर्स. अकाउंट डेबिट कितना दे विल परचेज? उनका लाइबिलिटी कितना है? नेट लाइबिलिटी 800. तो दे विल परचेज 800 शेयर्स. We have done one similar. So कितना रुपीस पे करना पड़ेगा एक डिबेंचर के ऊपर? 105. तो कितना हो जाएगा?
84,000। तो ये टोटल अमाउंट के लिए क्या क्रिएट होगा? डिबेंचर्स क्रिएट होगा। कितना परसेंट? 9% मॉर्गेज डिबेंचर। एंड बिकॉज डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस, सो 9% मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट टू व्हाट एल्स? प्रीमियम है 100 रुपीज का डिबेंचर 105 में इशू किया। Previous sum which we had done, if you remember, there was a discount 100 rupees का 96 में दिया था। यहाँ पे 100 rupees का डिबेंचर 105 में दिया। So what is it? Securities premium account. So 4,800 डिबेंचर्स हुआ। कैसे? 4,000 का एप्लीकेशन मिला, 800 डिबेंचर स्मार्ट बुल्स ने खरीदा। So it comes to 4,800 into how much? 100 rupees. Here 4,800 into 5. Multiply करो, how much you get? 4,800 into 100 becomes 4,80,000, right? And 4,800 into 5 becomes 24,000. Being debentures issued, debentures issued at premium to the public and balance subscribed by underwriter. Balance subscribed by underwriter. क्या हुआ? 4,000 के लिए एप्लीकेशन और 800 जो डिबेंचर है हुआ है परचेज। अंडरराइटर हिमसेल्फ, उसका नेट लाइबिलिटी उतना आया है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम कमीशन का एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर द कमीशन। सो सेकेंड वन इज फॉर द कमीशन। सो कितना परसेंट कमीशन दिया है क्वेश्चन में? स्मार्ट बुल्स for underwritten by the issue was underwritten by Smart Bull for a commission of 2.5%. So here, so commission is a expense to the company. So क्या आ जाएगा? Debit all expenses and debit all expenses. So underwritten commission, underwriting commission अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? अंडरराइटिंग कमीशन किसको पे करना है? स्मार्ट बुल्स को। तो स्मार्ट बुल्स अकाउंट कितना? सी नथिंग इज गिवन। तो एक शेयर का इशू प्राइस कितना है? सो यहाँ पे 4,000 here, 4,800 into कमीशन कितना? यहाँ पे कुछ बोला है, इशू वॉज अंडरराइटन बाय स्मार्ट बुल एट अ कमीशन ऑफ 2.5। तो स्मार्ट बुल्स को ने क्या स्मार्ट बुल्स का कितना हो जाएगा? 3,200 जो उसको यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी में माइनस हुआ, फिर 800 उसने खुद में खरीदा, तो पूरा मिला के कितना डिबेंचर्स हुआ जिसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा? 4,000। कैसे पता चला? 3,200 plus 800 because Smart Bull is appointed as the underwriter for 80% of the issue. Total 5,000 shares था जिसका 80% होता है 4,000
जिसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। कितने रुपीस के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, तो उसने पे, सबने पे कितना किया है 105, नॉमिनल वैल्यू करके नहीं बोला है, तो हम इशू वैल्यू पे कमीशन चार्ज करेंगे एंड कमीशन है 2.5%। सो हाउ मच इज दिस कमिंग टू? मल्टीप्लाई करो 4000 into 105 into 2.5% is coming how much? 10,500. It is coming 10,500 being commission due. अभी तक पे नहीं किया, being commission due, being commission due on debentures. ये हो गया। फाइनली सेटलमेंट करते तो स्मार्ट बुल्स को कितना पैसा पे करना है? 84,000। स्मार्ट बुल्स को कितना पैसा पे करना है? 84,000 बिकॉज 800 शेयर ही हैड टोल्ड दैट ही विल सेल 4,000 शेयर्स, जिसमें 3,200 का तो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, तो 800 बैलेंस उसको खुद को सब्सक्राइब करना पड़ा। बट कितना कमीशन मिलना चाहिए उसको? 10,500। सो वो माइनस करके बाकी का पूरा पैसा पे करना पड़ेगा स्मार्ट बुल को, तो कंपनी को पैसा मिलेगा, बैलेंस पैसा कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है, इट विल बी, यहाँ पे थर्ड एंट्री, मनी विल कम टू अब्रोल लिमिटेड, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? हु विल गिव? स्मार्ट बुल्स अकाउंट। कितना पैसा देंगे? 84,000 देना चाहिए था, माइनस 10,500 जो स्मार्ट बुल को कमीशन के लिए मिलना चाहिए, तो वो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट स्मार्ट बुल विल पे। सो हाउ मच इट विल कम? 84,000 minus 10,500, which is 73,500. 73,500 being balance settled. Being balance settled. इसको क्या बोलेंगे? Being balance amount. Being balance amount settled. With this sum is done. Next sum, authorized capital of Jalram Limited was 12,50,000 equity shares of rupees 10 each. Authorized capital is what? It is a limit, ceiling, maximum shares which the company can issue. So ये जो Jalram Limited है, it can issue 12,50,000 shares of rupees 10 each. Company issued 80% shares at a premium of rupees 2 per share. तो 12,50,000 का 80% कितना होता है वो फाइंड आउट करो। 12,80,000 का, सॉरी 12,50,000 का 80% is how much? How much do you get? 10 lakhs. You get 10 lakhs. So 10 lakh shares company issue करेगी, जिस and कितने में issue करेगी? 10 rupees का share at a premium of 2 rupees. 10 rupees ka share at a premium of 2 rupees, which was entirely underwritten as follows. Kotak will subscribe to the public 40%. उन्होंने कितना शेयर सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कोटक, who is a underwriter, appointed underwriter, 40%. कोतेजा 30%, ठक्कर 20%, गणत्रा 10%, 40, 30, 20, 10, मतलब पूरा 10 लाख शेयर्स के लिए
ओनली अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया गया है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 9 लाख इक्विटी शेयर्स। 9 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए क्या हो गया, एप्लीकेशंस मिला, विच इंक्लूडेड मार्क्ड एप्लीकेशंस ऑल्सो। सो टोटल एप्लीकेशन 9 लाख, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशंस है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्ड एप्लीकेशंस? मतलब इट हैज द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर। सो कोटक का कितना हिस्से में मार्क्ड एप्लीकेशन है? 2,85,000 शेयर्स। कोतेजा का 3 लाख शेयर्स। ठक्कर का 1,10,000 shares. Ganatra ka 1,05,000 shares. Underwriters are entitled to get 5% commission on face value. Face value मतलब 10 lakh shares into 100. फेस वैल्यू पे कमीशन निकालना। इससे प्रीवियस सम में हमने इशू वैल्यू पे निकाला बिकॉज नथिंग वाज टोल्ड, बट यहाँ पे दे हैव पर्टिकुलरली मेंशन दैट फेस वैल्यू पे कमीशन कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का लाइबिलिटी निकालना है एंड गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जलराम लिमिटेड। सो जर्नल एंट्री भी करना है एंड net liability of underwriters find out करना है। So statement showing liability of underwriters, सबसे पहले we will write gross liability। सबसे पहले we will write gross liability। gross liability दिया हुआ है, total number of shares is 10 lakhs। कैसे पता चला? It is given issued capital is how much? Issued capital is authorized capital 12,50,000 का 80%, which is coming to how much? 10 lakh shares, which is coming to 10 lakh shares। अब इसका परसेंटेज दिया हुआ है, वो ध्यान में रखना। 40%, 30%, 20%, 10%। तो 0 कम किया तो रेशियो भी आ जाएगा। 40:30:20:20:10। 10 के टेबल में 4s are 3s are 2s are 1s are। तो 4:3:2:1। What will be the ratio? 4:3:2:1। This is the ratio। तो 10 लाख को डिवाइड करो। 40% will be 4 lakhs, 30% will be 3 lakhs, 20% will be 2 lakh। किसका परसेंटेज निकाल रहे? 10 lakhs का। किसका परसेंटेज निकाल रहे? 10 lakhs का। दिया है कितना अंडरराइटर को कितना परसेंट शेयर्स परचेज करना, एंड 10% गणतरा का है जो कि रहेगा 1 लाख। 10 लाख का 40%, 4:3:2:1 is 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10। 10 कैसे आया? 4 + 3 + 2 + 1। 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10। सो ग्रॉस लाइबिलिटी भी हो गया। इससे लेस करते मार्क्ड एप्लीकेशंस, इससे लेस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। सो इसको लिख लेते हैं गिवन। लेट अस राइट इट एज गिवन। सो कितना दिया है कोटक का? ब्रैकेट में 2,85,000 आ गया। धनत्र सॉरी कोतेजा का कितना दिया है? 3 lakhs। या मार्क्ड एप्लीकेशन भी गिवन ना। एंड ठक्कर का कितना दिया है? 1,10,000। एंड गणत्र का कितना दिया है? 1,05,000, राइट। सो ये कितना हो जाएगा? सबको ऐड करो। हाउ मच इज दिस कमिंग? व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस, हाउ मच यू गेट? डू यू गेट 8 lakhs? व्हेन वी ऐड वी गेट 8 lakhs। सो हमें मिलेगा बैलेंस। व्हाट वी विल गेट इज बैलेंस। Balance will be how much? 4 lakh minus 2,85,000, 1,15,000. 3 lakh minus 3 lakh, 0.
2 lakh minus 1 lakh 10,000, 90,000. 1 lakh minus 1 lakh 5,000. We get 5,000. अब ये सबको ऐड करो या फिर 10 लाख माइनस 8 लाख करो, सेम आंसर मिलेगा. अब क्या करना है, बैलेंस गलती से डी आ गया था, बैलेंस में से लेस करेंगे. अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, क्या लेस करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का फॉर्मूला है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का फॉर्मूला है, डू यू ऑल रिमेंबर, unmarked applications is equal to total applications minus marked application. Unmarked applications का फॉर्मूला क्या है, total applications minus marked applications. तो total applications 9 lakh है. Am I correct? Total applications received is 9 lakh. Company received application for 9 lakh shares. So total application मिला है 9 lakh. और marked applications है, you can see in the question, marked application is 8 lakhs. So unmarked application की वो application जिसमें कोई भी underwriter का stamp नहीं है, is how much? It is 1 lakh. It is how much? 1 lakh shares. 1 lakh shares is unmarked applications. So इसको भी nothing given. Let us divide in the ratio of 4:3:1. So 1 lakh को ये रेशो में डिवाइड करो, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को 4:3:2:1 रेशियो में डिवाइड करो. सो 1 लाख इंटू 4/10 तो 40,000 आ जाएगा. 40,000, ये 3/10 है तो 30,000 आ जाएगा. ये 2/10, 1 लाख इंटू 2/10 सो 20,000 आ जाएगा. फिर ये कितना आ जाएगा, 10,000, राइट. Now what we will get? Again we will get the balance. यहाँ पे किसी का तो क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा. 1,05,000, 1,15,000 minus 40 is how much? 75,000. फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस 30,000. ये कितना हो जाएगा, 90 minus 20, ये कितना हो जाएगा, 15,000 ना, minus 5,000 minus 10,000. माइनस माइनस इज प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज माइनस. तो minus 5,000 minus 10,000 is minus 15,000. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, कैलसी में रख के देखो, सेम आंसर आ जाएगा. तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 1 लाख आंसर आएगा. 2 लाख माइनस 1 लाख इज 1 लाख, राइट. सो नाउ व्हाट वी विल डू, क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा. किसका किसका क्रेडिट एडजस्ट करना है, कि दोनों का नेगेटिव है. कोटेजा और गणत्रा का नेगेटिव आंसर आया है. जिसका भी नेगेटिव है तो उनका क्रेडिट को हम एडजस्ट करते हैं. सो लेट अस लेस एडजस्ट क्रेडिट या क्रेडिट एडजस्टेड ऑफ कौन सा दो अंडरराइटर, कोटेजा एंड गणत्रा. इन दोनों का क्रेडिट एडजस्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पे किसको देना है, कोटक को देना है, ठक्कर को देना है. उनका रेशो क्या है, कोटक का 4 है, ठक्कर का 2 है, थर्ड वाला ना, राइट. तो वही रेशो को यहाँ पे लो, 4:2. सी कोटेजा एंड गणत्रा का नेगेटिव है तो उनका रेशो नहीं लेंगे. तो कोटक का कितना शेयर है, 4 है,
ठक्कर का कितना शेयर है? 2 है। सो उसमें 45,000 को डिवाइड करो, 30 + 15 इज 45,000। तो 45,000 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 30,000 यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी माइनस नहीं लिखना है, क्या लिखना है? माइनस का प्लस करना पड़ता है ना, तो ये 0 होता है, तो इधर प्लस 15,000। तो 45,000 इंटू 4/6 कितना है? 45,000, 4 + 2 is 6, तो 4/6 is how much? 4/6 यहाँ पे 30 आ रहा है, और यहाँ पे आएगा 15,000। क्रेडिट एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पे दोनों ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, 30 और 15, माइनस प्लस एडजस्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे कितना आता है? नेट लाइबिलिटी आ जाएगा, बिकॉज फॉर्म अंडर राइटिंग तो नहीं है, लास्ट में ऐड करने के लिए ना, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे कितना आ रहा है? 75 माइनस यहाँ पे नील, यहाँ पे कितना आ रहा है? 55,000, यहाँ पे कितना आ रहा है? नील। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट द नेट लाइबिलिटी विच इज 1 लाख। क्वेश्चन में नेट लाइबिलिटी फाइंड करने को बोला था, हमने फाइंड कर लिया, बट क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया है। व्हाट इज इट? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री में पहले तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल पास द एंट्री फॉर एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, कि कितना शेयर पब्लिक से मिला, कितना शेयर अंडरराइटर ने खरीदा। तो सबसे पहले जो पब्लिक से मिला वो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो पब्लिक से मिला वो पैसा आया। कितना शेयर्स पब्लिक से मिला? 9 लाख एप्लीकेशन एंड 10 रुपीज का शेयर, 2 रुपीज का प्रीमियम। कैसे मालूम? क्वेश्चन में गिवन है, कंपनी रिसीव 9 लाख इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड 10 रुपीज का शेयर है, बट कैसे इशू कर रहे? प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। सो यहाँ पे 12 रुपीज लिखना पड़ेगा। सो 9 लाख शेयर हमें कैसे मिला? 12 रुपीज में, राइट? नाउ टेल मी, नेट लाइबिलिटी किसका है? कोटक का है, 45,000। उसको 45,000 शेयर खरीदना है 12 रुपीज पे, तो कोटक अकाउंट 45,000 इंटू 12, और ठक्कर हैज टू परचेज 55,000 shares. So 55,000 share into 12. So what we will do here? एप्लीकेशन जितना मिला वो लिखा, फिर लिखेंगे 2 अंडरराइटर है, एक है कोटक, व्हाट इज द स्पेलिंग? 1 मिनट, TA। सो कोटक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर खरीदेगा वो? जितना उसको लाइबिलिटी है, इंटू 12, एंड ठक्कर ऑल्सो विल हैव टू परचेज शेयर्स। कितना उसका लाइबिलिटी है? 55,000, और एक शेयर का इशू प्राइस है 12 रुपीज, तो उतना ही पे करना पड़ेगा। सिर्फ रेस्ट टू कोटेजा एंड धनत्रा, उनका तो लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी नील है, मींस दे विल नॉट परचेज एनी एडिशनल शेयर्स। जितना उनको शेयर सेल करना था, जितना उनका ग्रॉस लाइबिलिटी था, उतना उन्होंने सेल कर दिया। सो नाउ आई वांट द आंसर। 9 लाख इंटू 12 कितना आ रहा है? 1 लाख, 1 करोड़ 8 लाख आ रहा है, 1 करोड़ 8 लाख। 9 लाख इंटू 12 किया कैलसी में, तो आंसर आया 1 करोड़ 8 लाख। फिर 45,000 इंटू 12 किया, 5 लाख 40। 55,000 इंटू 12 किया, 6 लाख 60।
इसका दो चीज क्रिएट होता है लाइबिलिटी. सी टू थिंग्स आर गेटिंग क्रिएटेड. वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 10 रुपीज का है इक्विटी शेयर, और दूसरा 2 रुपीज प्रीमियम में दिया, तो इट विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम. कितना नंबर ऑफ शेयर है? 9 लाख प्लस 45,000. कितना शेयर है? 9 लाख पब्लिक ने खरीदा, 45,000 कोटक ने खरीदा, 55,000 टक्कर ने खरीदा. सबको ऐड करो, यू गेट 10 lakhs. सो यहाँ पे आ जाएगा 10 lakhs, राइट? 10 lakhs ना, 9 लाख प्लस 45 प्लस 55 कितना होता है? 10 लाख होता है. 9 लाख प्लस 45 प्लस 55 इनटू 10 रुपीज. एक शेयर 10 रुपीज का है, सो कितना हो जाएगा? 1 crore हो जाएगा. Is it coming to 1 crore? And 10 lakh into 2, 10 lakh into 2 rupees का प्रीमियम per share. So this will be 20 lakhs. This will be how much? 20 lakhs. Being a application received from public and balance share subscribed by underwriters. तो यहाँ पे क्या हो गया है? being applications, being या तो ऐसे बोल सकते हैं, being equity shares issued at premium to the public and balance subscribed by underwriters. Balance subscribed by underwriters. Now next one is what? अभी कमीशन का करना है, अंडरराइटिंग कमीशन. सो अंडरराइटिंग कमीशन is a expense to the company, debit all expenses and losses. Underwriting commission account debit. और फेस वैल्यू पे कमीशन निकालने बोला है. फेस वैल्यू कितना है? 1 crore है. 10 लाख इंटू 10, उस पे 5% कमीशन निकालो. सो 1 crore पे फेस वैल्यू कैसे मालूम मुझे? सी क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड, what they have told, underwriters are entitled to get 5% commission on face value. So face value है 1 crore into 5%. How much it is coming? It is coming to 5 lakh. It is coming to 5 lakh. अब ये 5 लाख में कितने अंडरराइटर्स है? एक ही अंडरराइटर है या 4 अंडरराइटर्स है? सो 2. व्हाट आर द नेम ऑफ द अंडरराइटर? कोटक. उसका कितना % है वो बाद में देखते हैं. 40% है ना. 2 कोटेजा 30%, वो बाद में अमाउंट निकालते हैं. 2 ठक्कर का 20% है ना. फिर लास्ट गणत्र का 10% है. So अभी लेट अस फाइंड आउट इंडिविजुअल अंडरराइटर को कितना कमीशन मिलेगा. इंडिविजुअल अंडरराइटर को टोटल कमीशन अगर 5 लाख है, टोटल कमीशन कैसे पता चला? 1 crore का 5%. तो कोटक का अंडरराइटिंग कमीशन का परसेंटेज है 40%. सो यहाँ पे करेंगे 40% और यहाँ पे 5 लाख इंटू 30%. यहाँ पे 5 लाख इंटू 20% और फाइनली 5 लाख
इंटू 10% कितना आ रहा है? 5 लाख का 40% कितना है? 2 लाख. नेक्स्ट वन इज 1,50,000. 5 लाख का 40% निकालो कैलसी में. 5 लाख का 30% निकालो. 5 लाख का 20% निकालो. 5 लाख का 10% निकालो. कमीशन पे नहीं किया है, ड्यू है. तो क्या बोलेंगे? बीइंग कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर्स, बीइंग कमीशन ड्यू, बीइंग कमीशन ड्यू, बीइंग कमीशन ड्यू और पेएबल, राइट. ये भी हो गया. नेक्स्ट अभी बैलेंस सेटल करना है ना. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेट अस सी फॉर कोटक एंड ठक्कर. फॉर कोटक एंड ठक्कर का क्या है? उनको 5,40,000 और 6,60,000 कंपनी को पे करना था. फिर उनका कमीशन कितना है? कमीशन कितना है उनका? कोटक का है 2 लाख. तो 5,40,000 में 2 लाख उसको मिलना भी है. तो बैलेंस माइनस होके रिमेनिंग मनी ही विल पे टू द पब्लिक, टू द कंपनी. सो कंपनी को पैसा मिलेगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट. तो दो लोग हैं, वन इज अकाउंट, अनदर वन इज कर अकाउंट. पहले देखो कोटक को कितना पैसा पे करना है? 5,40,000. ठक्कर को कितना कंपनी को पे करना है? 6,60,000. सो इन द ब्रैकेट आई विल राइट 5,40,000 माइनस जो उसको कमीशन मिलना चाहिए और 6,60,000 माइनस कमीशन जो मिलना चाहिए. तो यहाँ पे देखो कितना कमीशन मिलना चाहिए. यहाँ पे इसका 5,40,000 माइनस 2 लाख एंड 6,60,000 माइनस, इसका कितना है? टक्कर का कमीशन कितना है? 1 लाख का कमीशन है ना. सो कोटक का 2 लाख कमीशन है, ठक्कर का 1 लाख कमीशन है. सो वो माइनस करके बाकी का पैसा, वो माइनस करके बाकी का पैसा वो लोग कंपनी को पे करेंगे और उनका अकाउंट सेटल करेंगे. So how much this will come? 3,40,000 and this will come 5,60,000. दोनों को ऐड करो. Is it coming 9 lakh? 9 lakh being accounts, being balance settled, being balance settled. Finally अभी भी दो अंडरराइटर्स है जिन्होंने जितना शेयर सब्सक्राइब करना था वो पूरा सब्सक्राइब कर लिया था क्योंकि उनका नेट लायबिलिटी नील था. तो उनको तो कंपनी से कमीशन मिलेगा. सिर्फ दिस टू अंडरराइटर कोटक एंड ठक्कर, उनका क्या, कोटक एंड ठक्कर का क्या था? उनको कंपनी को से कंपनी का शेयर खरीदना था. तो जितना कमीशन मिलना चाहिए उतना ले लिया, बैलेंस अमाउंट कंपनी को पे कर दिया. बट देयर आर टू अंडरराइटर, कोतेजा एंड गणत्रा, जिनका कोई भी नेट लायबिलिटी नहीं था. उनको तो कंपनी से कमीशन मिलेगा. कमीशन मिलेगा तो यहाँ पे देखो, जब कमीशन ड्यू था तो कोतेजा का क्रेडिट में था 1,50,000, गणत्रा का क्रेडिट में था 50,000. अब पैसा मिलेगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट, क्रेडिट का ऑपोजिट इट विल बी डेबिट. क्रेडिट का ऑपोजिट इट विल बी डेबिट. कोतेजा अकाउंट डेबिट एंड लास्ट वाला क्या है? गणत्रा अकाउंट डेबिट. कितना है कोतेजा को मिलना है कमीशन? यहाँ पे देखो कोतेजा के सामने कितना अमाउंट है? 1,50,000. गणत्रा के सामने कितना अमाउंट है?
50,000। अब कंपनी जब कमीशन पे करेगी तो क्या बाहर जाएगा? मनी विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। सो ये हो जाएगा कितना? 2 lakh। being commission paid, being commission paid by underwriters, paid by underwriters. With this sum is also done. I will end today's lecture. Thank you very much, everyone.